tracking चलती कैसे, ठीक है? We'll first focus on the instrumentation side and then we'll focus on how do we pull out data. At least what are the basic constructs of pulling out data. Okay. So let me first. Also, एक बार Adobe का मुझे like Omniture का access मिला, then I can access everything, right? All the logs, correct? Yes. Everything you can access. There is nothing wrong. No issue. ठीक है, तो मैं quickly मतलब screen share कर रहा हूँ. But I think page name के accesses चाहिए रहेंगे, मतलब what page name people. नहीं, nothing you need. मैं दिखाता हूँ. ठीक है, तो for example, so I can show it from my app also, but अभी के लिए मैं तुम्हें वेबसाइट से दिखा रहा हूँ. ठीक है. बोलोगे तो ऐप से दिखा दूंगा. ऐप में थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क लगता है, चार्ज लगाना पड़ता है, बट इट्स नॉट अ बिग डील. Okay. देखो तो होता क्या है, for data to flow into my web analytics tool, right? Something needs to happen on my website, right? Automatically it will not flow, correct? Right. Let's say if user came to a certain page or user clicked on a certain button or user basically used the search widget, right? For every action, I am sending some information to Omniture, correct? Otherwise, Right. Omniture will not be able to track it just on its own, right? So I'm just Right. trying to show how it works. So for obviously we do that instrumentation on the apps also, on mobile web also, on desktop web also. So let's see how it looks on the desktop web. So Right. now, if I am sending that data to Omniture, ideally, so the on the right side you can see this is the developer tool window of my Chrome browser. Okay. So if I am sending some information to Omniture server, basically I'm sending it over the network, right? I'm basically making an internet call, right? Right. So इसमें यहाँ network tab में, which is why I have the network tab selected in the Chrome developer tool, right? So ideally, if the data is being sent over to Omniture, I should be able to see some calls in the network tab. ठीक है? Right. So that is what I'm going to show you. ठीक है? So yeah, I think मैंने देखा है Make My Trip पे हम जाते हैं तो उसमें 200 ms 100 ms वैसे दिखाता है, Omniture लिखा रहता है. हाँ, correct. So basically the way it goes is let's also look at a detailed call. जैसे मैंने अब पेज लोड करा, ठीक है? तो नाउ आइडियली ये पेज जब मैंने लोड करा तो इसका जो पेज लोड का इवेंट है वो Omniture के अंदर गया होगा. Correct. और उस पेज लोड इवेंट में there will be different attributes that I would have passed, right? Otherwise, how would I know कि the page load happened for the home page of Make My Trip, right? Correct. So ideally that call should also have a page name. Right. Should also have attributes like that this is desktop web. Correct. Otherwise, how will Omniture know, right? Right. Will also have attributes like कि Omniture के अंदर, if you have ever opened Omniture, you will find that there are different suites, there are different workspaces. So desktop data goes into a different workspace, but app data goes into a different workspace. So that workspace information should also be there in that call. अगर वो सारी चीजें उस call में नहीं होंगी, then the data will not flow to the right place, right? Right. So the calls are basically the URL that Omniture gives us is basically, so they have a standard metrics URL, but उन्होंने जो URL बनाया that is called metric.companyname.com. ठीक है? तो अगर मान लो Nykaa यूज कर रहा होता तो it would have been metrics.nykaa.com/something. Okay. Right? So what I'm doing now is कि मैं metrics से सर्च कर रहा हूँ. ठीक है? I think आपने कॉमा डाला है बीच में. हाँ, वो कॉमा चलेगा. So now जितने भी नेटवर्क कॉल्स गई हैं उसमें से जो फिल्टर होकर के आई हैं वो ये हैं. ठीक है? अब let's look at some of the calls. तो initiate कौन कर रहा है? Something called pwtracker.js, which is a JavaScript that Omniture has given us that we have put on our website so that we are able to track it. ठीक है. अब अगर मैं कोई भी कॉल खोलूं, let's say या ये खोलूं, ये देख लेते हैं. ठीक है? पहले पूरा URL देखते हैं, फिर पैरामीटर्स भी देखते हैं. ठीक है? So let me just copy link address. If I show it to you here, लंबा सा URL आएगा, but I will show you a few important things. तो ये मैंने Omniture की कॉल भेजी metrics.makemytrip.com. ठीक है?
this is MMT prod, which is the workspace. ठीक है. Now we discuss things like कि भाई पेज नेम तो जाना चाहिए ना, अगर पेज नेम नहीं जाएगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये होम पेज है. अब देखो ये इस पूरे URL में then the parameter start, right? Question mark के बाद parameter start, all the attributes that I can set. ठीक है. अब देखो इसमें एक पेज नेम जा रहा होगा. So you can see something here, right? C70 equals landing brand homepage India MHP. Correct. ठीक है. So this is the page name. You will be able to see a distinct page name also. Page name equals landing brand homepage India MHP. Got it. ठीक है. So this is how it works, right? कि मतलब not only you have to send the base URL, you also have to send all the additional parameters that you want to track, and those parameters are basically become like parameters in the URL. So based on those parameters in the URL, Omniture is able to read it and basically then able to give you views when you actually use Omniture internal, मतलब on from the console, मतलब from the dashboard, right? अगर ये data तुम नहीं भेजोगे तो obviously it will not be able to track accordingly, right? So on different pages you will see different things, right? So for example ये home page था तो इस पे page name ये आया है. अब इसका जो LOB है, अभी तो home page है तो there is no LOB, right? तो LOB के अंदर इन्होंने brand भेज दिया है. यही पेज अगर C24 के अंदर ब्रांड भेजा, एंड विल टॉक अबाउट व्हाट आर दीज V's एंड C's, उस पे मैं बाद में आता हूँ. बट बेसिकली C24 के अंदर में ब्रांड इसलिए भेजा है बिकॉज यहाँ पे कोई LOB नहीं है, दिस इज जस्ट ब्रांड. अगर यही मैं होटल का कोई पेज लोड कर रहा होता है, यहाँ C24 के अंदर होटल आ रहा होता, लिखा होता, एक्चुअली डोमेस्टिक होटल लिखा हुआ आ रहा होता, राइट? तो सो ऑन एंड सो फोर्थ इट वर्क्स. ठीक है. फिर उसके बाद लैंग्वेज भी देखो इंग्लिश आ रही है. डोमेन करेंसी भी ऑब्वियसली इसमें कुछ वो ये परसेंटेज मार्क के आ रहा है. दोज आर बेसिकली स्पेशल कैरेक्टर्स क्योंकि वो HTTP में वैसे ही चलता है. बट अगर मैं उसको रिजॉल्व करूंगा ना तो यू विल बी एबल टू सी कि यहाँ पे एक्चुअली INR, ये देखो डोमेन करेंसी INR, ये वेबसाइट की करेंसी INR चल रही है, डोमेन लैंग्वेज इंग्लिश, राइट? एंड देन बिकॉज मैं अभी लॉग्ड इन नहीं हूँ तो देखो V39 के अंदर गेस्ट भी लिखा हुआ आ रहा है. कहाँ पे? और ये हम बनाते हैं मेक माई ट्रिप वाले या फिर ये गूगल एट्रीब्यूट करता है, और या फिर ये कैसे एट्रीब्यूट बनाते हैं? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू एज PMs, राइट? वी मेक श्योर. अब देखो V39 के अंदर गेस्ट जा रहा है. ओके. तो दिस इज एग्जैक्टली यू हैव टू इंश्योर एज अ प्रोडक्ट मैनेजर कि जब भी तुम कोई डेटा इंस्ट्रूमेंट, मतलब जब भी तुम कोई नया पेज बनाते हो या कोई नया फीचर बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, you have to make sure that the right C's and V's are getting populated with the right values. Only then Omniture will be able to capture it, and then basically then later on you will be able to use Omniture to basically pull out that data. If you don't do the V's and C's properly, then obviously तुम्हारा वो data missing होगा, and you will not be able to, let's say tomorrow Parikshit might come and say कि यार मुझे बताओ कि ट्रेन्स लिस्टिंग पेज से कितने लोग वेट लिस्टेड टिकट्स लेकर के आगे बढ़ते हैं, राइट? तो you will not be able to show that data until unless you are passing that parameter somewhere in one of the V's or C's कि हाँ भाई ये wait listed वाला लेकर के आगे बढ़ा था. Right, sir. If you don't pass that parameter wait list तो फिर वो capture नहीं होगा, right? It will get missed. ठीक है. तो ये this is one of the core important things as a PM कि you have to make sure that whatever relevant cuts are there, I'll show you a document later on also कि मैं कैसे करता हूँ. Whatever relevant cuts are there, all the relevant cuts are getting populated. देखो ये वाला पार्ट तो स्टैंडर्ड है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो तुम्हारा इंजीनियर खुद भी कर लेगा. बट उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ पैरामीटर्स बाय डिफॉल्ट पॉपुलेट हो रहे हैं, जैसे OS बाय डिफॉल्ट पॉपुलेट हो जाता है, यूजर एजेंट पॉपुलेट हो जाता है, ठीक है, वो तो ब्राउजर खुद ही भेज देता है. बट ये सारी तो तुम्हारी इंटरनल चीजें हैं ना. दिस इज योर बिजनेस कट. Right. That business cut you have to explicitly populate. If you don't populate it, you will miss it. ठीक है. तो ये हो गया. This is the instrumentation part, and something similar happens on the apps also. Apps पे अगर तुम्हें देखना है तो the way to do it is use this tool called मैं दिखा देता हूँ. I might not be my demo. ठीक है, दिखाई देता हूँ. We have what time? ये fight नहीं है. तो ऐप के अंदर कोई डायरेक्टली मतलब जैसे ब्राउजर के अंदर डेवलपर टूल्स होते हैं, ऐप के अंदर तो कोई डायरेक्ट देखने का तरीका नहीं है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज द वे टू डू इट इज बेसिकली यूज अ इंटरसेप्टर ऑफ सॉर्ट्स, राइट? जैसे मैंने ब्राउजर से जितनी नेटवर्क कॉल्स आ रही हैं, आई एम एबल टू सी इट इन द डेवलपर टूल्स ऑफ द ब्राउजर, राइट?
तो तुम्हारे ऐप से जितनी नेटवर्क कॉल्स जा रही हैं, राइट, ऐप इज ऑल्सो मेकिंग इंटरनेट कॉल्स, राइट. So what you have to do is you put an interceptor in between and then you look at all the calls that your app is making in your interceptor. And that interceptor in technical language is basically a proxy, right? So a proxy server hota hai, right? So what we do is there are multiple products in the market, but Charles is one of the most popular. So Charles use karna hota hai. So what you do is कि आप अपने फोन पे ऐप चला रहे हो तो फोन के वाईफाई को मॉडिफाई करके उसके अंदर चार्ल्स की सेटिंग्स एज ए प्रॉक्सी डाल देते हो. ओके, ठीक है. तो क्या होता है, सारा कुछ चार्ल्स के थ्रू राउट होने लगता है. देन चार्ल्स कैन इंटरसेप्ट द कॉल्स एंड देन बेसिकली you will be able to see all the internet calls that are being made from your app in your Charles मतलब Charles के अंदर दिख जाएगा सब कुछ. ठीक है. तो this is what Charles looks like. फिर डेटा निकालने पे भी आते हैं. डेटा निकालना एक बार ये समझ में आ जाएगा ना तो डेटा भी समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है. तो अभी ये विंडोज को प्रॉक्सी कर रहा है, इसको ऑफ करता हूँ. ठीक है. और यहाँ पे यू कैन सी कि इट इज सेइंग कि अच्छा अगर आपको चार्ल्स के थ्रू प्रॉक्सिंग करनी है SSL की तो आप इस तरीके से कर सकते हो. बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वन. ये हेल्प के अंदर वो बताता है कि कैसे आप प्रॉक्सी करते हो. इट टेल्स यू ऑल द डिफरेंट थिंग्स दैट यू नीड. बट इफेक्टिवली व्हाट यू डू इज यू गो टू प्रॉक्सी एंड यू गो टू प्रॉक्सी सेटिंग्स. ठीक है. सो इट इज टेलिंग यू कि यार ये चार्ल्स 8888 पे चल रहा है एंड देन ऑब्वियसली ये चार्ल्स मेरे लैपटॉप पे चल रहा है तो इट जिस आईपी एड्रेस पे चल रहा होगा वो मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस होगा. करेक्ट. देन पोर्ट एक कॉन्सेप्ट होता है कि आईपी के ऊपर एक पोर्ट होता है, राइट. तो वी आई जस्ट हैव टू पुट दिस इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे देखो ये मुझे दिखा रहा है माय लोकल आईपी एड्रेस. सो चार्ल्स इज रनिंग ऑन माय लैपटॉप व्हिच इज ऑन दिस आईपी एड्रेस 192.168.0.182 एंड द पोर्ट इज बेसिकली एन एडिशनल कॉन्सेप्ट की मतलब समझ लो ऐसे कि एड्रेस एंड एड्रेस के अंदर फिर मतलब एड्रेस के अंदर फिर ब्लॉक नंबर, राइट. ओके. चार्ल्स जहां पे चल रहा है इट इज रनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस व्हिच इज माय लैपटॉप्स आईपी एड्रेस एंड इट इज रनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक नंबर व्हिच इज पोर्ट नंबर 8888. ठीक है. So all I have to do is go to my mobile phone and modify my Wi-Fi to basically start going through this. मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो how am I doing it. It will happen in every phone, right? And also the phone doesn't need to have Charles, right? हाँ, phone does not have to be on Charles. Charles यहीं चलेगा. कॉल इसके थ्रू राउट होंगी. ठीक है, समझ गया. तो अब मैं देखो तुम्हें यहाँ से दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ. अब मैं यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ. मैं अपने फोन से स्क्रीन पे लैंड कर रहा हूँ. ठीक है. यहाँ गए. सॉरी फोन में थोड़ी फाइट है, दूसरे तरीके से करना होगा. सेटिंग्स में गए, वाईफाई में गए. ठीक है. वाईफाई पे क्लिक करा, वाईफाई के सेटिंग्स में गए, वाईफाई के सेटिंग्स में जाके एडिट मारा. ठीक है. ये मेरा वाईफाई है. इसमें मैं गया एडवांस्ड ऑप्शंस में. अब जनरली प्रॉक्सी नन होता है, करेक्ट, बिकॉज आई एम नॉट प्रॉक्सिंग, आई एम नॉट राउटिंग इट थ्रू एनी अदर. ठीक है. अब मैं कर दूंगा प्रॉक्सी को मैनुअल. ठीक है. मैनुअल कर दिया. अब यहाँ पे होस्ट नेम डालूंगा. व्हाट होस्ट नेम, बिकॉज आई हैव टू राउट इट थ्रू चार्ल्स रनिंग ऑन माय लैपटॉप. तो आई विल पुट माय वो जो लोकल आईपी एड्रेस मैंने तुम्हें दिखाया था, राइट, चार्ल्स पे. और आप पोर्ट डाल दोगे. हाँ, और मैं पोर्ट डालूंगा. एग्जैक्टली. तो अब मैं यहाँ डाल रहा हूँ. सो माय लैपटॉप्स आईपी एड्रेस इज 192.168.0.182 और पोर्ट मैंने डाल दिया 8888. ठीक है. ओके. सो वी आर गुड. अब देखो क्या होगा. ठीक है. अब यहाँ के स्टेप्स हमारे हो गए. मैंने तुम्हें स्टेप्स दिखा दिया. अब मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ फोन से. अब मैं अपने लैपटॉप पे वापस आ रहा हूँ. अब दिखाता हूँ लैपटॉप पे क्या हो रहा है.
I hope I have the Charles enabled build. Yes, I do. Perfect. ठीक है, रुकना है इसको। ठीक है, अब देखो फन। ठीक है, रेडी? अब मैं ऐप लॉन्च कर रहा हूँ अपनी। ठीक है, आई एब्स्ट्रैक्टेड अ फ्यू स्टेप्स फ्रॉम यू, बट बेसिकली वो वाईफाई मॉडिफाई करने के अलावा एक दो छोटे स्टेप और होते हैं, वो करने होते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट इज कि आपके पास ऐप चार्ल्स इनेबल्ड होनी चाहिए। तो जनरली ऐप चार्ल्स इनेबल्ड होती है बाय डिफॉल्ट, बट हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स के लिए एमएमटी की ऐप पे चार्ल्स को बाय डिफॉल्ट डिसेबल कर रखा है। Oh, So you need to get a version of the app which has Charles enabled. It is fairly straightforward, वो भी मैं बता दूंगा, बट मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी बिकॉज मैं टेस्टिंग करता रहता हूँ। ठीक है, अब मैं अपने फोन से मेक माई ट्रिप लॉन्च कर रहा हूँ, which you cannot see, but you look at what is happening in Charles. बट सर अभी तो आपने चार्ल्स की लॉकिंग कर रखी है ना मेक माई ट्रिप में, तो अभी कैसे दिख रही है? नहीं, मेरे पास जो ऐप की बिल्ड है उसमें चार्ल्स इनेबल्ड है। ओके ओके, हाँ, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। क्या है हमारी जहाँ बिल्ड्स बनती हैं, यार मैं भूल गया, दिमाग से क्यों उड़ गया अचानक वो। RC URL क्या है? अच्छा, मैं URL बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ दिखा देता हूँ। URL बेसिकली कुछ नहीं है, एक पैरामीटर ऑन ऑफ करके जो भी ऐप का फाइल बनता है ना, जब भी ऐप जनरेट करते हो, बस एक पैरामीटर प्लस माइनस करते हैं हम। तो अगर प्लस करके कर दिया तो वो चार्ल्स इनेबल्ड बिल्ड होती है। उसको जब तुम फोन पे इंस्टॉल करोगे तो उसके सारे कॉल्स यहाँ दिखेंगे। ठीक है सर। तो मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बेसिकली अपने क्यूए टीम को बोल रहा है कि भाई चार्ल्स इनेबल्ड बिल्ड दे दो मुझे। ठीक है, समझ गए ना? अदरवाइज ना बाय डिफॉल्ट वो चार्ल्स डिसेबल कर रखा है हमने, तो चार्ल्स के अंदर कॉल्स दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी all the calls that are going to make my trip are actually coming here because I launched the app. ठीक है, and as you might have suspected, यहाँ भी metrics.makeMyTrip आ गया। ठीक है, अब देखो उसमें क्या था, उसमें empty prod लिखा हुआ आ रहा था, क्योंकि if you remember this call, यहाँ पे suite क्या था, empty prod था। दिख रहा है ना ये? यस यस। अब यहाँ देखो, यहाँ पे suite क्या है, empty mobile app। ओके, तो रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स गए वो अलग से चार्ल्स दिखा देता है। ठीक है, अगर रॉ रिक्वेस्ट देखनी है तो यहाँ पे दिख रहा है metrics.makeMyTrip.com, ये पूरा बेस URL है। उसके अंदर अगर बिल्कुल रॉ देखना है तो इस व्यू में जाके देख सकते हो, ये पूरा URL का बाकी पैरामीटर एज ए रॉ, जैसे मैंने अभी वहां दिखाया था वैसा दिख रहा है। बट चार्ल्स हैज दिस नाइस फीचर, इट आल्सो गिव्स यू अ नाइस ब्यूटीफुल ये वाला व्यू। सॉरी, क्या दबा दिया मैंने, फॉर्म वाला व्यू। हाँ, चार्ल्स हैज दिस नाइस फीचर, इट आल्सो गिव्स यू दिस फॉर्म वाला व्यू। मतलब कौन सी की में कौन सा वैल्यू, कौन से पैरामीटर में कौन सा वैल्यू गया है वो अलग से दिखा देता है। हाँ, मतलब सेम चीज इधर रॉ व्यू में, मतलब डेटा वही है, एक्चुअल जो गया है वो ये है, बट उसको एक सुंदर इस वाले व्यू में भी दिखा देता है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे ऐप के अंदर मैं लॉग्ड इन था, तो यहाँ V39 के अंदर लॉग्ड इन गया है। ठीक है, ये रीडेबल फॉर्म में दे दिया इन्होंने। हाँ, ये बेसिकली रीडेबल फॉर्म में दे दिया। ठीक है, पेज नेम जैसे स्प्लैश स्क्रीन सबसे पहले लॉन्च हुई, तो जो पहली कॉल गई थी वो स्प्लैश स्क्रीन की गई थी, विच इज वाई दिस द फर्स्ट कॉल। तो उसमें हमने पेज नेम हमने सेट किया है, कॉमन टीम ने मॉक कस्टम स्प्लैश। ठीक है, पैरामीटर हमने सेट किया है कि भाई इंडिया वाली वर्जन अभी यूज हो रही है, यूए वर्जन नहीं यूज हो रही है। तो डोमेन एसबीओ इंडिया, डोमेन कंट्री इंडिया, डोमेन करेंसी INR, डोमेन लैंग्वेज इंग्लिश। अकाउंट का टाइप कौन सा यूज कर रहे हैं, पर्सनल। और ये जितने भी पैरामीटर्स हैं जैसे V54, इसको जैसे एक याद रखना V39। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें वहां ऑमनिचर के अंदर। ठीक है, तो ये सारे ये जो जितने भी हैं ये हमारे कस्टम, मतलब ये बेसिकली बिजनेस वेरिएबल्स हैं, हम सेट कर रहे हैं।
ठीक है। अगर हम ये omniture की कॉल में सेट नहीं करेंगे तो ये डेटा omniture में एज इज फ्लो नहीं होगा। और ये जो V's एंड C's हैं ये मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हो रहा है, ठीक है। बट These are बेसिकली attributes, right? हाँ, These are events or these are basically dimensions, yes, okay, dimensions समझ on गया। which you will cut the वेबसाइट data पे within the omniture। ओके समझ गया, अभी क्लिक हो गया मुझे। हाँ ठीक है, देखो और भी कॉल्स देख सकते हो। और कौन सी गई थी, इस पे देखो पेज नेम गया ऐप लॉन्च, ठीक है। पहले स्प्लैश आया, फिर ऐप लॉन्च हुई, फिर उसके बाद होम पेज आया। यू कैन सी ना होम पेज, मॉब होम पेज, ठीक है। अब ये देखो m_v15 है। अब मैं जस्ट क्विकली तुम्हें omniture के अंदर लेके जाता हूँ, वहां v15 दिखा था ना, यस ठीक है। अब देखो मैं यहाँ कौन से स्वीट में हूँ, मैं यहाँ मोबाइल ऐप के अंदर में हूँ, ठीक है। तो आइडियली मुझे v15 मिलना चाहिए यहाँ। तो अब मैं देखो यहाँ किस चीज से सर्च कर रहा हूँ, EVAR15, EVAR15 विच इज v15 पेज नेम। गॉट इट। यहाँ पे क्या था, पेज नेम v15 के अंदर हम पेज नेम भेज रहे हैं। समझ आ गया, यहाँ से जो मैं भेज रहा हूँ वहां पे वही दिख रहा है। मैंने m_v15 में मॉब होम पेज क्यों भेजा, क्योंकि मैंने omniture के अंदर सेट कर रखा है। जब मैंने omniture के मतलब जब मैं Adobe से बात किया तो मैंने उसको बोला कि भाई v15 इज बेसिकली द पेज नेम वेरिएबल, उसका जो कैनोनिकल नेम है उसको पेज नेम वहां डैशबोर्ड के अंदर सेट कर दो, बराबर। ठीक है। ये टेक टीम करती है ना ऑल दीज थिंग्स? हाँ ये टेक टीम नहीं, ये omniture की टीम करती है। omniture की टीम। दिस इज अ वन टाइम सेटिंग राइट, कि मैंने फिक्स कर दिया है अडोबी के साथ, मैंने फिक्स कर लिया है कि भाई v15 में मैं पेज नेम भेजूंगा, तो जो तुम मुझे डैशबोर्ड दे रहे हो उसमें उस वेरिएबल का नाम पेज नेम सेट कर दो। गॉट इट। दिस इज अ वन टाइम टैक्सोनॉमी सेटिंग राइट, कि v15 विल स्टैंड फॉर पेज नेम। गॉट इट। तो पर अभी जब हम स्प्रिंट्स लेते हैं ना अनुराग सर, तो टेक टीम बोलती है कि हाँ ठीक है ये हम लोग कर लेंगे, मतलब वो लोग करेंगे या वो लोग omniture टीम से करवाएंगे? हाँ नहीं जैसे वो मैंने ये नया करते फीचर हैं, लॉन्च किया। वो ये करते हैं कि वो यहाँ जब ऐप का कोड लिख रहे हैं तो व्हाट दे आर डूइंग इज m_v15 में पेज नेम बना के डाल रहे हैं। ओके वो ये डेटा पासिंग वाला काम कर रहे हैं। समझ गया। One thing is कि what variable stands for what business dimension. That is a one-time thing that Omniture team has done, where we have told them कि boss EVAR15 should stand for page name. ठीक है? ठीक। That's a one-time thing, right? It is like setting, मतलब how do I say it? It is basically setting the meaning of those variables. Got it. Which is a one-time thing कि एक बार मैंने taxonomy set कर दी। जैसे होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैप, किसी को मैप दिखा रहा हूँ तो मैंने लेजेंड्स फिक्स कर दिए कि ग्रीन स्टैंड्स फॉर यहाँ पे फर्टाइल लैंड्स हैं, ब्राउन स्टैंड्स फॉर यहाँ पे पहाड़ हैं, राइट। तो वैसा ही है राइट, दिस इज लाइक सेटिंग द लेजेंड ऑफ द मैप। v15 will always stand for page name, v39 will always stand for something else, ठीक है, which is the logged in behavior, right। v24 will stand for the LOB name, right, so on and so forth। v54 will stand for UUID of the user, मतलब user ID of the user, right। तो ये मैंने सेट कर रखा। तो अब जैसे यहाँ पे मैं EVAR, तो ये दिस इज वन टाइम सेटिंग विद omniture टीम, ये हो चुका है, इसके लिए अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बट यू नीड टू नो कि v15 स्टैंड्स फॉर व्हाट। इफ यू डोंट नो v15 स्टैंड्स फॉर व्हाट, यू विल नॉट नो कि किस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू भेजनी है। तो जब मैं अपनी टेक टीम को बोलता हूँ कि भाई पेज नेम ये सेट कर देना, तो अगर कोई नया डेवलपर है, ही माइट नॉट नो कि पेज नेम कौन सा वेरिएबल है, राइट। तो ही विल सर्च कौन से वाले में डालूं, मतलब कौन सी वी में डालूं। अगर मैंने उसको सिर्फ बोल दिया पेज नेम सेट कर दो, पेज नेम शुड बी मॉब ब्रांड होम पेज, तो कोई पुराना डेवलपर है उसको पता है, वो तो सीधे उठा के v15 में ठूस देगा। बट कोई नया डेवलपर है उसको नहीं पता होगा, राइट, ही वुड नॉट नो, राइट। आई विल हैव टू टेल हिम कि बॉस पेज नेम जो है वो तुम्हारे कोड में m_v15 है, m_v15 इज योर पेज नेम। एंड वाई एम बिकॉज ये मोबाइल है। अगर ये लैपटॉप वाला कॉल देखोगे, जो डेस्कटॉप वाला कॉल था, उसमें एम नहीं है, उसमें सिर्फ वी है। ओके ठीक है, तो मोबाइल वाले कॉल्स में m_v वेरिएबल्स होते हैं और लैपटॉप वाले कॉल्स में
वी वेरिएबल्स होते हैं, मतलब लैपटॉप नहीं, वेब वाले कॉल्स में वी वेरिएबल्स होते हैं, ऐप वाले कॉल्स में m_v वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, got it. जस्ट एन एडिशनल थिंग आया, मैंने सोचा बता दूं। तो समझ में आना स्टार्ट हुआ। अब देखो कुछ कुछ देखते हैं, जैसे यू कैन सी V8 में 877 जा रहा है, यू कैन सी दिस इज द ऐप वर्जन। Yes. तो अगर मैं वहां V8 EVAR8 सर्च करूंगा, V कंसोल के अंदर EVAR होता है, तो यहाँ अगर मैं EVAR8 सर्च करूंगा तो आइडियली इट शुड शो मी ऐप वर्जन। सी EVAR8 इज ऐप वर्जन। Got it. ठीक है, तो ये हो गई डायमेंशनिंग कि कौन कौन से बिजनेस वेरिएबल्स पे कट करोगे। ठीक है, सारे बिजनेस वेरिएबल्स एक टाइम सेट हो चुके हैं, मतलब उनका लेजेंड फिक्स हो चुका है कि V8 विल स्टैंड फॉर ऐप वर्जन, V81 will stand for traffic channel, and as you can imagine, this will be different for different companies. We have decided to use V8 as app version. अगर if Nykaa और Myntra were using Omniture, they might decide कि नहीं, मैं V8 के अंदर पेज नहीं भेजूंगा, उनकी इच्छा है, राइट? ठीक है, तो वो वन टाइम सेटिंग हमने कर ली, हमने अपने Omniture के लिए डिसाइड किया कि V8 के अंदर हम ऐप वर्जन भेजेंगे. That we have agreed with the Omniture team. They have accordingly done the setup from their side like that, right? And now every time I send data, I need to know कि V8 के अंदर ही ऐप वर्जन जाता है. If you send it in V17 फिर गड़बड़ हो जाएगी. Understood ना? ठीक है, तो ये हो गया डेटा इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट. ठीक है, I wanted to show it to you so that you understand कि डेटा फ्लो कैसे होता है. And once you get handy with Charles, you will start feeling very powerful. अगर तुम्हें कुछ डेटा नहीं, तुम्हें वेरिएबल का नाम नहीं भी पता, ऑल यू हैव टू डू इज गेट चार्ल्स वर्किंग, सी इट इन विद इन चार्ल्स. चार्ल्स के अंदर एक बार दिख जाएगा, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन से वेरिएबल, या कई बार होता है ना डेटा निकालना होता है, मुझे पता नहीं होता कि यार कौन से वेरिएबल में जा रहा है ये, राइट? तो व्हाट आई डू इज कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग अराउंड कि यार मुझे बता दो ऐप वर्जन कौन से वेरिएबल में जा रहा है, मैं क्या करता हूँ, चार्ल्स लगा के यही देख लेता हूँ कि अच्छा, यहाँ देख के पता आइडिया तो मिल ही जाता है कि अच्छा, अगर मुझे लॉग्ड इन स्टेटस देखना है तो आई नीड टू लुक एट EVAR39. ठीक है, ठीक. तो इस तरीके से मैं कर लेता हूँ. तो इट इज वेरी हैंडी बोथ वेज, बिकॉज देखो कहीं डॉक्यूमेंटेशन तो कंपनी के अंदर बनी हुई है नहीं, सब मतलब सब भगवान भरोसे ही चल रहा है, राइट? तो हैविंग नॉलेज ऑफ ऑल दीज टूल्स हेल्प्स यू टू गेट दिस इंफॉर्मेशन फास्टर एंड क्विकर. Got it, sir. ठीक है, मतलब यू डोंट हैव टू आस्क अराउंड. तुम्हें जाकर एनालिटिक्स वाले बंदे को भीख मांगने की जरूरत नहीं है, इंद्रजीत शर्मा को, कि यार मुझे बता दो कौन से वेरिएबल में मुझे यूजर की UUID भेजनी है, राइट? You can look at this call. And one more thing that often happens is कि maybe there is a business variable that is not being captured until today. ठीक है, कभी उसकी नीड नहीं पड़ी, but now you need it. What do? Then you go to the analytics team, जो कि मार्केटिंग के अंदर रोल अप होती है, उनको बोले कि यार मुझे एक और EVAR चाहिए, गेट मी एन EVAR एंड आई वांट टू यूज, मतलब एक और वेरिएबल चाहिए, आई नीड अनदर V वेरिएबल और C वेरिएबल, और उसके अंदर आई वांट टू पुश दिस डेटा, सो प्लीज आस्क Omniture टीम टू बेसिकली सेट इट फॉर मी. ओके, ठीक है. मान लो कभी कोई नया कट बनाना है, जैसे जब एक्चुअली इस कंपनी में Omniture की पहली इंप्लीमेंटेशन मैंने ही कराई थी, तो ऐप के ऊपर, तो ऐप में तो पहली बार हो रहा था, तो वी डिसाइडेड कि इसमें ये भेजेंगे, इसमें ये भेजेंगे, इसमें ये भेजेंगे. तो अब मान लो मैंने डिसाइड करा कि आई वांट अनदर वेरिएबल ऑन दी व्हिच आई वांट टू कैप्चर, कि ऑन दी होटल लिस्टिंग पेज इसने बजट होटल सेलेक्ट करा था या प्रीमियम होटल सेलेक्ट करा था. ठीक है, राइट. अब मे बी वी हैव नेवर कैप्चर्ड दैट डेटा एवर इन द पास्ट. हाउ टू कैप्चर दैट डेटा आई नीड अ V वेरिएबल, राइट? V वेरिएबल नहीं होगा तो मैं कैसे भेजूंगा, राइट? तो आई विल गो टॉक टू Omniture टीम, टेल देम कि भाई कोई V वेरिएबल बचा है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ. तो दे विल टेल मी कि अच्छा V47 बचा हुआ है, V47 अभी यूज नहीं होता, आप उसके अंदर अपना ये होटल टाइप भेज सकते हो. मतलब बढ़िया. तो मैं फिर V47 के अंदर होटल टाइप भेजना स्टार्ट कर दूंगा, एंड मीनवाइल Omniture टीम विल डू द सेटअप एट देयर एंड, कि जब मैं V47 के अंदर होटल टाइप भेजूं तो दे आर एबल टू, they need to enable that variable at their end, right? So they enable it and then I can start sending it. ओके. और आप ये जो एनेबलमेंट करोगे वो आपको खुद करना है या फिर मतलब टेक टीम से करवाना पड़ेगा, राइट? हाँ, नहीं, ये टेक टीम भी नहीं करती, ये Omniture अगेन, कोई भी नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना है Omniture टीम. ओके. तो Omniture को बोलूंगा भाई V47 वेरिएबल एक्टिवेट कर दे मेरे लिए, then they will activate it and I will tell them कि also set that variable name as hotel type,
so they will set it as hotel type so that in the dashboard you have a meaningful name for it, right? ठीक है. And then it will start, then it will get activated. Then all I have to do is then they'll tell me कि हाँ V47 activate कर दिया, then I can start sending data. ठीक. Right? And sending data is obviously the tech part. So I have to tell my tech team कि यार होटल टाइप ना V47 के अंदर भेजना. तो उनके लिए तो कुछ नहीं है. It's just a key value pair. They will just set the value of that variable as hotel type and be done with it. ठीक. ठीक है. Okay. ठीक है. ठीक. तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. तो इंस्ट्रूमेंटेशन आई थिंक इज क्लियर टू यू नाउ. या अब थोड़ा अब हम तो फर्स्ट पार्ट इज इंस्ट्रूमेंटेशन, सेकंड पार्ट इज